السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئیے ہم سب مل کر درود شریف میں اللہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا میرے دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین و مذہب کے بھارت کے بہت بڑے شاعر ہیں، اور آپ کا ایمان بھی زندہ ہے، عقیدہ بھی زندہ ہے، اور آپ اللہ والوں میں دیوانے ہیں۔ ایک جگہ علامہ اقبال لکھتے ہیں، ملازمت ہو، تجارت ہو یا ہو کوئی پیشہ، ملازمت ہو، تجارت ہو یا ہو کوئی پیشہ، چاہیے انسان کو اس میں حاصل کرے کمال۔ ہم جو کام کرتے ہیں اس کام کے اندر کمال حاصل کرنا، حکمت کو حاصل کرنا، ایک ریکارڈ قائم کرنا، ریکارڈ بریک کرنا ہر ایمان والے کا فرض ہے۔ میرے دوستو، ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ہم سب آدم کی اولاد ہیں۔ ایمان والے اچھے بھی ہوتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں میرے دوستو، کہیں گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی نیکی کو ہمیشہ دیکھتا ہے، غور کرتا ہے، اللہ کے رسول کے صدقے میں نجات دیتا ہے، انعام دیتا ہے، جنت دیتا ہے۔ میرے دوستو، ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاتا چلوں، محمد رفیع صاحب بھارت کے سنی مسلمان ہیں میرے دوستو، عاشق رسول ہیں، اولیاء اسلام کے دیوانے ہیں میرے دوستو۔ محمد رفیع صاحب کی نعت شریف ہے، حمد شریف ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں کلام یہ ہے، تیرے در پہ جھکے میرا سر ہے یہی آرزو، اللہ اللہ۔ وہ شہ کربلا آپ کے پیارے حسین، وہ شہ کربلا آپ کے پیارے حسین، علی اور فاطمہ کے وہ دلارے حسین، کر گئے یوں وفاؤں کے سجدے ادا، کر گئے یوں وفاؤں کے سجدے ادا، جنگ میں جب کہ وقت نماز آ گیا، سر کٹا کے کیا خون دل سے وضو۔ دوستو، آج تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجدہ کوئی دین والا، کوئی ایمان والا، کوئی چھوٹا بڑا مسلمان آج تک نہیں کر سکا۔ وہی آخری سجدہ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ قربان ہو گیا، اللہ کے رسول قربان ہو گئے۔ تفسیر میں جاننا نہیں چاہتا تو بہرحال محمد رفیع صاحب، ان کے بہت سارے دینی کلام ہیں میرے دوستو، اور سرکار کی محبت میں سلام یا نبی سلام علیہ کا، یا رسول سلام علیہ کا بہترین سلام ہے میرے دوستو۔ بھارت کا موسم تازہ ہو جاتا ہے، بھارت کی آتما تازی ہو جاتی ہے، بھارت کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا ہے میرے دوستو۔ ایسی آواز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملی ہے۔ محمد رفیع صاحب کی عادت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے سرور کائنات صدقے میں مجھے اچھی آواز ملی ہے، خوبصورت آواز ملی ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل میں رہتا تھا، اور سرکار کی محبت ان کے دل میں رہتی تھی میرے دوستو۔ میں آپ کو بتاتا چلوں میرے دوستو، جب کبھی محمد رفیع صاحب درود شریف پڑھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ غور کرو میرے دوستو، غریبوں کو ساتھ دینے والا، ارے مرنے سے پہلے کچھ خاندانوں کا جینا چڑھاتے تھے میرے دوستو، راز کے ساتھ، رہسن کے ساتھ، سیکرٹ کے ساتھ۔ تو کیا بامبے میں تھا، کیا سارے مہاراشٹر میں تھا، بھارت میں کہاں کہاں تھا، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور محمد رفیع صاحب کو پتا ہے۔ دل والا انسان تھا، دین والا انسان تھا، ایمان کے ساتھ تھا میرے دوستو۔ کم بولنے کی عادت تھی میرے دوستو، بولتے کم تھے لیکن آواز اچھی تھی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، زندگی بھر میرے دوستو سرکار کی سنت ان کی زندگی میں دیکھیے، دوسروں پر غصہ کرنا یا گالی دینا، ایسی عادت ان کو نہیں تھی میرے دوستو۔
जिंदगी भर घर वालों को क्यों ना हो, दोस्तों को क्यों ना हो, मोहल्ले में क्यों ना हो, डिपार्टमेंट में क्यों ना हो, अरे कहीं भी क्यों ना हो, जलसे में क्यों ना हो, मिलाद की बात क्यों ना हो, रात की महफिल क्यों ना हो, हज के दौरान क्यों ना हो, उम्र के दौरान क्यों ना हो, हवाई जहाज में क्यों ना हो, ट्रेन में क्यों ना हो, गाली गलौज गुस्सा करने की आदत मोहम्मद रफी साहब को नहीं है। मेरे दोस्तों, ये अल्लाह के रसूल की शान है। अल्लाह ताला दुनिया में भेजता है, अल्लाह के बंदे दुनिया में आते हैं, अल्लाह के रसूल के सदक़े इंसानियत के साथ था और भारत में सेकुलर ख्यालात के साथ था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ था, हिंदुओं के साथ, गरीबों के साथ अपना माल कुर्बान करते हुए इंसाफ करने वाला बंदा मेरे दोस्तों मोहम्मद रफी साहब है, मरहूम मोहम्मद रफी साहब। और भारत की मोहब्बत उनकी जिंदगी में थी। जैसे कि हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लाह ने अकबाल ने लिखा इसको। हजरत मोहम्मद रफी साहब मानते थे, क्योंकि मोहम्मद रफी के अंदर अल्लाह का खौफ था। हमेशा वो अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रिया अदा करते थे कि अल्लाह तेरी बारगाह से तेरे हबीब के सदक़े में ये आवाज मुझे मिली है, इस आवाज के सदक़े भारत में मेरी इज्जत है, सारी दुनिया में मेरी इज्जत है। और बाहर कंट्रीज वाले कहते हैं, मैं सब हर कौम की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात नहीं, हर कौम का आदमी बाहर मुल्क वाले कहते हैं कि हमारे मुल्क में सब कुछ है लेकिन ताजमहल नहीं है, मोहम्मद रफी नहीं है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे। ये अल्लाह ताला का खूबसूरत खजाना है। अल्लाह ताला की बारगाह से सरवर कायनात के साथ में मेरे दोस्तों इंसानियत के साथ, मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारते थे। रमजान का एहतराम, रमजान में रोजों का एहतराम, रमजान में दुनिया से रुखसत होते हैं, जबरदस्त बारिश होती है रहमत इलाही। जब हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह शहीद होते हैं तो बिजली गिरती है, जबरदस्त बारिश होती है। वही हाल देखिए, मैं मुआवजा नहीं कर रहा हूँ, वो अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। देखिए अल्लाह ताला की रहमत मापे में देखिए, कई हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए, हिंदू भी है मुसलमान भी है, सब कुछ है। जब उनको दफनाने के लिए जनाजे पर फूला वगैरह डाल करके, फूलों के गले डाल करके लेके जाते हैं जनाजे का जुलूस, तो रास्ते में बरसात शुरू हो जाती है, हर आदमी छतरी के साथ है, छाते के साथ है। अल्लाह ताला का करम देखिए, जब अल्लाह ताला के बंदे दुनिया से रुखसत होते हैं तो उसकी रहमत जोश में आती है। मेरे दिल को फिर आज तड़का गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है। मेरे दिल को फिर आज तड़का गया है, वो मंजर मेरे सामने आ गया है कि लोगों ने तेरा जनाजा उठाया, मोहम्मद रफी को बहुत याद आया। मेरे दोस्तों, बंदा हर कौम के साथ था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सारे भारत के अंदर मोहम्मद रफी के खिलाफ बोलने वाला एक बंदा नहीं है। अरे रेड्डी क्यों ना हो, परमत क्यों ना हो, राजपूत क्यों ना हो, ठाकुर क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, मुसलमान क्यों ना हो, अरे विलन भी क्यों ना हो, हीरो भी क्यों ना हो, अरे दुश्मन भी क्यों ना हो, दोस्त भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ एक आवाज नहीं है। क्योंकि वो बंदा कम बोलता था, आवाज तो निकालता था लेकिन कम बोलता था। किसी को अपनी जिंदगी में गाली नहीं दिया। और मैं आपको कार के ड्राइवर के साथ इंसाफ करने वाला अल्लाह का बंदा मोहम्मद रफी है। एक बार ऐसा हुआ कि हिंदू पंडित शास्त्री बच्चों को लेकर घर में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद मोहम्मद रफी साहब से कहता है कि मोहम्मद रफी साहब, मेरे अंदर फन है, फनकारी है, लेकिन मेरा धंधा नहीं चल रहा है। 3 दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं भी हिंदू की फरियाद है। मेरे दोस्तों, मुझे माफ करना, मैं समझा रहा हूँ कि भारत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर रफी साहब का कैसा किरदार था, कैसे अखलाक थे, उनके सामने बयान करता है। पंडित जी बयान करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी भूखे हैं, 3 दिन से चूल्हा नहीं जला, मैं फनकार हूँ, मेरे पास फन है, आग है, लेकिन बम्बई इतनी बड़ी सिटी है, कहीं भी मुझे धंधा नहीं मिला, मैं परेशान हूँ। रफी साहब, मेरी समझ में नहीं आता, मैं क्या करूँ। 1970 के पहले की बात है मेरे दोस्तों, नोट करो ये पॉइंट, कितना बड़ा दिल वाला है मोहम्मद रफी। देखिए 1970 के पहले 2 पैसे, 3 पैसे, 5 पैसे का जमाना है वो। मोहम्मद रफी साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पक्का सुन्नी मुसलमान है लेकिन दिल नरम है। अंदर जाते हैं, वो दिना में 100 की नोट इतनी बड़ी होती, इतनी बड़ी 100 की नोट, 505 नोटा लाते हैं, ला करके उसके पूछने का अंदाज भी देखिए पंडित जी का, और रफी साहब के पेश करने का अंदाज भी देखिए। रफी साहब क्या करते हैं मालूम है आपको? बच्चों के हाथ में पैसे थमा कर कहते हैं कि बेटा
ये पैसे अपने हाथ में थमाना, अपने हाथ में रखना, अपने जेब में रखना और बाहर जाने के बाद बम्बई सिटी के अंदर मिठाई खरीद कर खाना। ये नहीं कहा कि चूल्हा जला लो, लकड़ा ला लो, गैस ला लो, फिर चिमनी का तेल ला लो, ये नहीं कहा। खाना पका लो, घर में सब ये नहीं कहा, क्योंकि इज्जत की बात है, विखार की बात है। हाजतमंद की इज्जत करना इस्लाम का सेवा है। हाजतमंद की कदर करना सरकार की सुन्नत है मेरे दोस्तों। साहिल जब हमारे घर के पास सवाल लेकर आता है तो उसको इनकार करने का हक भी हमें नहीं है। इसीलिए पुराना डायलॉग क्या है हमारे यहाँ, देरी करो। कितना प्यारा डायलॉग है, काटने की जरूरत नहीं है, दुकानने की जरूरत नहीं है, देरी करो। बताओ साइड में जाओ और लोगों को माना उसका तो दीजिए रखी साहब 500। गौर करो मेरे दोस्तों, कितना बड़ा दिल वाला बंदा है। सुन्नी मुसलमान जो होता है भारत का खजाना होता है। सुन्नी मुसलमान जो होता है भारत के साथ होता है। सुन्नी मुसलमान जो होता है दरगाहों के साथ, मस्जिदों के साथ, मदरसों के साथ, शेर खामोशा के साथ, कब्रिस्तान के साथ भी होता है, हिंदुस्तान के साथ भी होता है। ये सुन्नी मुसलमान की शान है मेरे दोस्तों, औलिया इस्लाम का करम है। और मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब के अंदर मेरे दोस्तों टंके की चोट पर देखिए, अल्लाह के रसूल की बारगाह में हजरत मोहम्मद रफी की का करिश्मा कहिए या उनके अकीदे का की करामत कहिए आप, ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जब कभी मोहम्मद रफी साहब दरूद पढ़ते थे तो आंखों में आंसू आ जाते थे। दरूद की दुनिया में एक अच्छा रिकॉर्ड अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का है। दुनिया उलमा कहते हैं कि दरूद शरीफ की बुनियाद पे अल्लामा इकबाल को विलायत का दर्जा मिला है। करोड़ों की तादाद में अल्लामा इकबाल दरूद शरीफ अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश करते हैं। मुझे मोहम्मद रफी साहब देखिए जब दरूद पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि सच्चा आशिक रसूल है। तो हज के लिए मक्का मदीना जाने के बाद देखिए मेरे दोस्तों, मक्के में सऊदी हुकूमत के परमिशन के साथ अजान का इंतजाम होता है मेरे दोस्तों। मुकद्दर का सिकंदर देखिए, लोग खट्टा मीठा बोलने वाले भी होते हैं, लेकिन यहाँ देखिए अकीदे की बरकत देखिए, उसकी उनके अकीदे पर अल्लाह का करम देखिए, अल्लाह के रसूल का करम देखिए, अरबस्तान के तमाम अल्लाह वालों का करम देखिए आप। मक्के की काबे के आसपास अजान देने का मौका इनको मिलता है। जब मक्के का मकाम खत्म हो गया, आप जाने लगते हैं तो लोग इसरार करते हैं, परेशान होते हैं, गुजारिश करते हैं कि हजरत सुबह में, दोपहर में, मगरिब में, इशा में आपकी अजान होती थी, हमें रूहानी मजा मिलता था, हमारे अंदर ताजगी पैदा होती थी, आप चले जा रहे हैं, रुकिए। लोग गुजारिश करते हैं और उसके बाद देखिए सऊदी हुकूमत उनको इनाम से नवाजती है। और उसके बाद देखिए मैं बताता हूँ आपको, मदीना में जब आपको मालूम है मदीने में के अंदर 8 दिन हमें स्टे करना पड़ता है, 40 नमाजें अदा करना पड़ता है। मदीने की हाजिरी के बगैर हज बेकार है मेरे दोस्तों। मदीने की हाजिरी को छोड़ने वाला शैतान है, शैतान की औलाद है, अबू जहल की औलाद है, अबू लहब की औलाद है, मरवान की औलाद है मेरे दोस्तों। हज के लिए काबे की हाजिरी जरूरी है, 40 नमाज़ां जरूरी है, कंपल्सरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में ये शामिल है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला नाराज हो जाता है, अरे जब तुम मेरे हबीब के करीब नहीं हो तो मेरे करीब क्या करोगे। दुत्कारता है अल्लाह ताला, तुम्हारी नमाज अपने जेब में रखना, तुम्हारा रोजा अपने जेब में रखना, तुम्हारा वजीफा अपने जेब में रखना, हर काम मेरे हबीब की मोहब्बत को लेके करो। तो जब देखिए मोहम्मद रफी साहब अल्लाह के रसूल की बारगाह में पहुंचे तो मेरे दोस्तों वहां पर आपको मालूम है आवाज करते हैं तो पुलिस पकड़ती है, पुलिस ताकीद करती है, पुलिस वहां की डराती है। लेकिन यहाँ देखिए मोहम्मद रफी साहब आशिक रसूल है, पता नहीं चला कि वो मोहम्मद रफी है, पता नहीं चला कि वो कहाँ है, लेकिन पता यह है कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में मोहम्मद रफी साहब पहुंचे हैं। तो क्या करते हैं मालूम है आपको, जोर से नाते शरीफ पढ़ते हैं, जोर से सलाम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों। पुलिस कैटेगरी, पुलिस की टीम उनको कंट्रोल करने की बजाय वो भी सलाम पढ़ते हैं, वो भी नाम पढ़ते हैं और गिड़गिड़ा के आप अल्लाह रसूल की बारगाह में दुआ करते हैं। तो पुलिस भी हाजियों के साथ, उम्रा करने वालों के, उम्रा में हाजियों के साथ, दूसरे मुसलमानों के साथ पुलिस भी आमीन आमीन करेगी। और इसी आलम में मोहम्मद रफी साहब सरकार की बारगाह में बेहोश हो जाते हैं। नरम दिल वाला, अच्छे और साफ वाला, अच्छे किरदार वाला। गौर करो मेरे दोस्तों, अगर आज आप सलाम पढ़ेंगे, आज का माहौल इतना खतरनाक है कि ऐसी जेल में लगा देंगे, वो जेल कहाँ होगी पता नहीं चलेगा। हमारे दोस्त मौलवी साहब, मौलवी मुनव्वर आलम, आजकल बेंगलुरु में काम करते हैं, हाफिज मौलवी खारी, जिनकी फरागत दारुल अमजदिया नागपुर से है, ऐसे हाथ उठा करके दुआ कर रहे थे कब्र शरीफ के पास जन्नतुल बकी में।
तो पुलिस आ गई, पकड़ ली उनको, किसी में हिद्दत है, ये शैतानी बात अबू जहल की बात बोले के बात बताइए आप। अरे तुम डॉक्टर के सामने हाथ फैलाते हो, एसपी के सामने हाथ फैलाते हो, मंत्री के सामने हाथ फैलाते हो, एमएलए के घर चक्कर लगाते हो, अफसर के घर चिकन बिरयानी ढोते हो, मटन बिरयानी, वहां तुम्हारा ईमान क्या हो जाता है, क्या हो गया है तुम्हें? अरे अल्लाह वालों की बात है, अल्लाह के खौफ के साथ हम हाथ उठाते हो, किसके बात का अमल किया जाता है दुनिया? ये अल्लाह वालों की सुन्नत है। हम दुआ अल्लाह ताला की बारगाह में करते हैं, लेकिन उनकी मोहब्बत में, मरने वालों की मोहब्बत में, अल्लाह वालों की मोहब्बत में। तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, एक अजीब गरीब जगह कमरे में उनको कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद क्या हुआ मालूम है आपको? बाहर नहीं छोड़े, लेकिन वहां पर पाकिस्तान के थोड़े मुसलमान थे, वो वहां अटेंड करके बड़ी मुश्किल के साथ उनको वहां से रिलीज करा के निकालते हैं बाहर। तो बहरहाल देखिए मोहम्मद रफी साहब की जिंदगी का तो देखिए, उनके अकीदा क्यों ना ईमान क्यों ना हो, ये करामत की बात है, करिश्मे की बात है कि आप मदीना शरीफ में अल्लाह के रसूल की बारगाह में आवाज के साथ नात पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं। ये मोहम्मद रफी साहब का एक करिश्मा कहिए या फिर करामत कहिए आप। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से फूल खिले हैं, गुलशन गुलशन, लेकिन अपना अपना दामन है, अपने अपने नसीब की बात है, मुक़द्दर की बात है। मेरे दोस्तों अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के अंदर हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए, सब मेरे कायनात के सिलसिले में, और भारत में खासकर अमन वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी, मोहब्बत वाली जिंदगी, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ हमें गुजर बसर करने का हिदायत अल्लाह ताला नसीब फरमाए। और मोहम्मद रफी साहब के जैसे जितने भी सेकुलर पर्सनालिटीज हैं भारत के अंदर, यूसुफ खान साहब की बात क्यों ना हो, मोहम्मद रफी साहब की बात क्यों ना हो, फ्रीडम फाइटर्स की बात क्यों ना हो, हजरत टीपू सुल्तान शहीद की बात क्यों ना हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात क्यों ना हो, शहीद अशफाक उल्लाह की बात क्यों ना हो, इन सब के सिलसिले में अल्लाह ताला पाक के अंदर अमन नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वजाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।